ਵਾਰੰਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਜਾਖੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਰੀਆ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਗੁਆਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਭੇਡ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਫਿਰਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਬਥੇਰਾ, ਜੀਵ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨੇ ਸਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ। ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਤੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਨਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਂਟੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭਾਜਿਤ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੀਗਾ।
उस जमाने के अंदर अज की तरह ट्रेनां या हवाई जहाज़ों के साधन नहीं हुंदे सन, या जीपां कारां बसां दे नहीं सन। आम सवारियां ज़्यादातर लोग बैलों ते करते सन। तो सभाजित पंडित किताबां दे बैल लद के कबीर साहब दे नाल बहस मुआसा करन वास्ते गया। ਉਹਦਾ भाव इतना ही सी कि उसनूं पता लगे कि कितनियां किताबां ये पढ़िया होया है, क्योंकि कबीर साहब की दूर दराडे बड़ी ही चर्चा सी। तो कबीर साहब कहंदे घर विच नहीं सी, अगे कमाली घर विच सी। तो पंडित पुछण लग्या कि कबीर साहब दा घर यही है? वो कहंदी कि तू कबीर साहब नूं देह समझदा है, मनुख समझदा है कि ओदा घर तू इस संसार ते समझदा हाँ? कहंदी ऐसा नहीं, कबीर दा घर आसमान ते, यहाँ सिलहली गैल पौना टिके पपील दा पंडित लादे बैल। ओदा घर तां सचखंड विच है, उत्थे तां चीटी भी खड़ नहीं सकदी गी, तू बैल लद्दी फिरदा है। ये बाणी ये दोड़ा कबीर साहब दा नहीं, एक कमाली दा उचारिया होया सीगा। तो कबीर साहब ने खुद भी अपनी बाणी च जिक्र किया है, दिन सो रैन वेद नहीं शास्त्र, यहाँ वसे निरंकारा, कहे कबीर नर तिसे त्यावो बाबरिया संसारा। कहते उत्थे वेद नहीं शास्त्र नहीं, ना कोई पढ़ने वाला ना कोई पढ़ाने वाला है, वो तो कुल मालक का देश है। तो संत खुद उसकी भगती करके भगती रूप होए हुंदे है। जो भी उन्होंने दे संपर्क विच आउंदा है उन्होंने भी भगती का दान दिंदे है, बल्कि उत्थे पहुंचण विच वो पूरी मदद करते हैं। सो गौर ना सहजो बाई की बाणी नूं सुनो जी। सहजो बाई का सहज प्रकाश पन्ना नंबर 10। सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान त्यान सुध नाहि, तार सके नह एक कूं, गह बहुत की बाही। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि तुसी ये ना सोचो कि उस स्कूल अंदर बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इकट्ठ ज़्यादा हुंदा है, वो स्कूल चंगा है। कहंदे नहीं, तुसी देखो कि पास किहड़े स्कूल विच बच्चे ज़्यादा हुंदे है। महाराज सावन सिंह भी कहंदे हुंदे सीगे कि कठ नूं देख के ये सबूत नहीं मिलता गा कि महात्मा पूरा है। पूरा तो पता लगता है कि जद असी जिवें पहलवान नूं पहलवान मिलता है, जद कोई शिष्य पूरा उन्होंने पास जाता है, जो अधूरा हुंदा है वो देख के नठदा है कि हुण कुछ मंगेगा। जिथे पूरे गुरु की महिमा गाई है उथे पूरे शिष्य की भी महिमा गाई है, पूरे शिष्य के उत्ते भी जोर दिता गया है। सो इस वास्ते महाराज सावन सिंह आपदे सत्संगां दे विच एक कहानी दसदे हुंदे कि एक महात्मा तुरया जांदा सी। किसी इंसान ने कहा कि देखो महात्मा जी, वो जो गऊआं दा वग जा रहा है वो कितना बड़ा है। महात्मा ने बड़े प्यार नाल पूछया कि तेरा बई उहदे विच की माल है।
वो कहता जी मेरा अपना तो कुछ नहीं गा, मेरे ताए का कट्टा है। ये पंजाबी कहावत है। तो कहने का भाव इतना ही है कि अगर किसी थां ज्यादा इकट्ठ हुंदा है, साडा उहदे विच किन्ना क हिस्सा है। फिर वो आप महाराज जी हरिद्वार की मिसाल दिंदे हुंदे सन कि जिथे 50 लाख तो भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उथे की हुंदा है, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, एक भेख दूसरे नूं नीचा दिखाउंदा है। नागे कहंदे आ साडी शाही पहला निकले, सुन्यासी कहंदे आ साडी पहला निकले, झगड़े खड़े हुंदे हैं। तुसी देख लो, अगर कोई मालिक दा प्यारा उत्थे मौजूद होवे तो इतने सारे भेख क्यों बन, इतनी ईर्खा क्यों होवे। तो ये सवाल आम उठता है कि उन्हें सिख नहीं जिन्ने के गुरु मिलते हैं। साडे दिलों च फिर विश्वास नहीं रहिंदा कि या तो इन्हां विच कोई गुरु है नहीं गा, कोई संत ही नहीं गा, जां है तो है कौन। ये सवाल महाराज सावण ते भी करिया कि जी संतां नूं अपनी कोई निशानी रखनी चाहिए है। वो हस के कहंदे कि वो कलंगी लाउण भी असीं सच्चे हैं। तो सच्चियां नूं किन्ना क लोग मनते हैं। इस दुनिया के लोगों ने किसी की खल लुआ दी, किसी नूं जिंदे जी सूली ते चाढ़ दिता, और किसी नूं तत्ते तव्यां ते बिठा दिता। तो किन्नी क कदर कीती गई। इस वास्ते संत जिन्हां रूहां दा फैसला दरगाह विच हो जाता है, वो उन्हां नूं संदेश देण वास्ते आउंदे हैं। सो पूरे महात्मा और अधूरे महात्मा की बाणी अंदर बार बार महिमा गाई है। जिथे पूरा है जिक्र आउंदा उथे अधूरे का भी आउंदा है। पूरा महात्मा कोई भी अडंबर करके बाहर नहीं दिखाउंदा गा, वो खुद शब्द नाम की कमाई करके शब्द रूप होया हुंदा है। वो सतपुरुष के पास पहुँच के सतपुरुष का ही रूप होया हुंदा है। प्यारे की सच्चाई है, वो भुल के भी किसी की निंदिया नहीं करता, वो हर एक की तारीफ करता है। यही उस महात्मा की निशानी हुंदी है, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या जलन नहीं हुंदी गी, विषय वकारां तो उपर हुंदा है। जब कोई एक दूसरे की निंदा करन लग्या है, ईर्खा करता है कि जी मैं ठीक है, वो महात्मा गलत है, तुसीं समझ लो कि इत्थे जो साडा वक्त बताया है वो बेकार है। महात्मा ना खुद निंदा करे, ना आपदे सेवकां नूं इजाजत ही देवे। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि जो सच्चा है वो वक्त की उड़ीक विच हुंदा है। वो कहंदा वक्त आप ही दस देगा। जो झूठा है, अधूरा है, वो अपनी सच्चाई पेश करन ते लग्या रहिंदा है कि मैनू कोई ये ना कह देवे। तो दादू दयाल दी कहानी महाराज जी सुणाउंदे हुंदे कि दो पंडित उन्हां दे पास उपदेश लैण वास्ते गए। अगे दादू दयाल वो बड़े ही दया वाले महात्मा सन, शांत चित सन। वो डेरे तो बाहर जा रहे सी, उन्हां दा सिर बिल्कुल वाल कटे हुए सन।
आम तौर पे बहुत सारे जो लोग आम तुरन लगे जे कि निच लाती तो बैठ जाते हैं कि बुरा सगन होया। अगर कुत्ते ने कंन इस तरह कर दिते वो तद भी तुरदे नहीं घरों कि बुरा सगन होया। कि खास मैं अपने पिता के अंदर भी देखता हुंदा, मैं कहता हुंदा सी होर हारमोनीयम तो कुत्ते कोल है ही नहीं कि जिहड़ा वजाऊगा, कंन है बेचारा वजा दिंदा है। तो ऐसे जो आदमी हुंदे है वो ये भी बड़ा अपसगन समझते है जे वाल कटिया वाला अगों नंगे सिर मिल जावे। तो दादू दयाल जी जब मिले तो पंडितां ने सोचा अपसगन हो गया, आपा तो महात्मा के दर्शन कर लगे सी। फिर वो कहने लगे चलो अच्छा प्राश्चित कर लेने हैं। उन्होंने दादू दयाल के सिर विच इस तरह ठोला लाया, कहने लगे अरे भाई दादू का डेरा कहाँ है। हुण बड़े शांत चित्त महात्मा सन, उन्होंने इशारे नाल दसता भी यही डेरा है जिथे तुसी आए। अगे जाके इंतजार करन लगे, पुछया, सत्संग विच उड़ीक हो रही सी। वो कहने लगे कि महात्मा जी बाहर गए हुए है, आउण वाले ही है। हुण जद देखिया तो उही महात्मा उत्थे आके सत्संग सुनाउण लग्या जिस दे सिर विच उन्होंने ठोले लाए सन, प्राश्चित कीता सीगा। वो शर्मिंदे होण लगे तो दादू दयाल जी बड़े ही निम्रता वाले सन। वो कहने लगे भी देखो प्यारिओ, अगर 2 पैसों की हांडी लईए तो उसनों भी खड़का लेने हैं। तुसी तां गुरु उत्ते सब कुछ वारना है, तो गुरु की खोज करनी भी कोई गुनाह नहीं हुंदी। नाम लैन तो पहला जिन्नी मर्जी तुसी खोज करो, लेकिन जब नाम ले लिया है फिर जो रास्ता वो महात्मा तुहानू दसदा है तुसी करके देखो, तुहाडा फायदा होएगा। तो मैं दसदा हुंदा है किसी महात्मा के चरणों में जाण तो पहला तुसी ये जरूर उसकी हिस्ट्री पढ़ो, देखो कि इहने कोई 10-20 साल अभ्यास किया, कोई कमाई की, कोई कुर्बानी की। ये बड़ी ही जरूरी हुंदी है, समझण वाली बात है। तुसी देखते हो कि दुनिया की कोई भी शय प्राप्त करनी है वो भी मेहनत मंगती है। बच्चा भी माता पीड़ा सह के जर के ही पैदा करती है, और डूंगे समुद्र दे विचों मोती भी डूंगी डुबकी मार के ही प्राप्त कर सकते हैं। सोना भी खान विचों खोद के ही निकाल सकते हैं। जब दुनिया की हर शय मेहनत मंगती है कि परमात्मा की भगती ऐसी है, परमात्मा ही ऐसा है जिहड़ा बगैर मेहनत करिया प्राप्त हो जाए, या गुरु की आज्ञा मनन तो बगैर ही वो प्राप्त हो जाए। गुरु की आज्ञा कौन मनेगा भाई? जो मेहनती है, जो मशक्कत करता है। कि जेड़े भजन के चोर हैं वो मशक्कत कर लेंगे, वो हरगज नहीं करनगे। सिर्फ वो दिखावे का जरूर अखा बंद करके भी बैठणगे, अगे पिछे भी भजणगे। तो रसल परकिंस कहानी सुनाता हुंदा है कि एक मालिक दे 2 नौकर सन। एक तां जद मालिक ने आउणा उन्हें अगे पिछे खूब दौड़ना, जद मालिक उतों चले जाता तो उसने पै रहना, खा पी लेना, उस तो बाद कुछ नहीं करना। जिहड़ा दूसरा नौकर सीगा
ਮਾਲਕ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ खूब मेहनत करनी, वो जगह की सफाई करनी। हुण खुद सोच के देख लो कि वो मालिक बई किहदे ते खुश होएगा। जो मालिक की आग्या मनदा है, मालिक नूं हाजिर नाजिर समझदा है, तो गुरु किस ते खुश होएगा बई? किहदी लाज रखेगा? जो गुरु नूं हाजिर नाजिर समझदा है, ईमानदारी नाल अपना भजन सिमरन करदा है। पूरा गुरु खुद भी कमाई करता है और अपने सेवकां नूं भी वो कहता भी देखो बेटा, तुसी भी कमाई करो, भजन दे चोर ना बनो। खुद भी वो काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचिया हुंदा है, वो साडे तरह मैलों विच नहीं लिबड़िया हुंदा गा। और सेवकां नूं भी यही उपदेश दिंदा है कि बेटा तुहाडी देह दे अंदर 5 चोर हैं। सब संतां ने इन्हां दा जिक्र किया है। किसी ने 5 चोर कहे, किसी ने 5 डाकू कहे, किसी महात्मा ने 5 लुटेरे करके बयान किए हैं। जिस सिरजनहार परमात्मा ने साड़ी सिरजना करी है, उन्हें साड़ी देह के अंदर अमृत भी रखा होया है। ये जो 5 चोर हैं, ये उस अमृत लुट रहे हैं। अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे, तो सानू ये नहीं पता कि असी लुटे जा रहे हैं। घर अंदर एक लुटेरा अगर दाखिल हो जाए तो घर के अंदर कोई समान नहीं छड्डागा। जिस दे घर अंदर 5 लुटेरे वड़ जान तो घर का मालक सोया होवे, ये तो हुण उन्हां दी ही मर्जी है कि की छड्डदे है। गुरु रविदास ने कहा, मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोग बनास, 5 दोग असाध जामे ताकि केतक आस। मिर्ग नूं कन्ना दा विछा हुंदा है। शिकारी लोग जां जंगल विच जाके वाजा वजाउंदे है, जिसनूं कंडा हेड़ी दा शब्द भी कहिंदे है, तो मिर्ग मस्त हो जाता है। शिकारी दे गोडियां दे उत्ते आके अपना सिर रख दिंदा है, उहनूं हांडियां चढ़ना पैंदा है। मिर्ग तां वैसे इंसान दे नेड़े नहीं आउंदा गा, शिकारियां दे किस तरह जा सकदा है, लेकिन कन्ना दे विषे ने ओदी जान ले ली। शिकारियां ने एक बोटी बोटी करके उसनूं हांडियां च पकाया। तो पतंग नूं अखां दा विषा है। जद दीवे दा प्रकाश हुंदा है, वो ये नहीं देखदा कि किहदा है, वो प्रकाश दी आशिक है। वो जाके अपनी जान उसते दे दिंदा है, खंभ सड़ा लैंदा है। तो अखां दे विषे ने उसकी जान ली। मच्छी नूं जवान दा चस्का है। शिकारी लोग गोश्त ला के दरिया या समुंदर विच या किसी गहरे तलाब विच सिट दिंदे है। वो मच्छी सबर नहीं करती, वो कुंडी नूं सने गोश्त हलक दे विच फसा लैंदी है और शिकारी लोग उस नूं बाहर खिंच लेंदे है, कीमा कीमा करते हैं। तो हांडियां चढ़ना पैंदा है। जवान दे चस्के ने किस की उहदी हालत की। हाथी नूं काम दा विषा हुंदा है, बड़ा ही ताकतवर जानवर हुंदा है। जो लोग उस नूं पकड़ते हैं वो बड़ा गहरा खड्डा खोद लेंदे है, उत्ते मामूली जी छत डाल दिंदे है और कागजां दी हथनी बना के बनौटी उत्ते खड़ी कर दिंदे है। हाथी काम दे वस होया, सच्चाई नूं समझ नहीं सकदा गा। मैं दसदा हुंदा कि काम बंदे नूं अन्ना कर दिंदा है,
कोले खड़ा आदमी नहीं दिसदागा, कामी बेशर्म हुंदा है, वो सकीरी ही भुल जाता है, रिश्ता ही भुल जाता है। तो हाथी आके गिर जाता है उस खड्डे च, भुखा प्यासा रहिंदा है। महावत लोग अंक समार मार जदों कमजोर हुंदा बाहर कढ लेंदे है। तो प्यारिओ, एक काम की कमजोरी ने किड्डा वड्डा जानवर बंदियां नूं टूही ते चुकी फिरदा है। तो गुरु रविदास जी कहंदे है, एक एक दोख ने उन्हां दी ये हालत कीती, इंसान विच पंजे ही है। तो कहने लगे ये किस तरह बच सकता है। फिर असी अजीब ही अकल के मालिक हैं। इन्हां तो बचन वास्ते की करते हैं? जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरां मस्जिदां धर्म स्थानां विच चक्कर भी लाउने हैं, होर भी कई किस्म के साधन असी करते हैं, जल धारे करते हैं, धूणियां तपाउने हैं। ये सारा उपाय इन्हां नूं वस करन दा ही करते हैं। लेकिन बजाए वस होण दे ये होर भड़क उठते हैं। बेशक बहुत सारे तुहानूं मिल जाणगे जिहड़े आरजी टैंपरेरी थोड़ा बहुता कहंदे है कि असीं इहनूं वस कर लिया, लेकिन जद मौका मिलता है कि आरजी इस तरह हुंदा है जिवें आपां किसी जरहीले सर्प नूं पकड़ के टोकरी दे विच बंद कर दईए। ਉਹਦੇ अंदर गुस्सा जहर होर वध जाता है। जद किते उसनूं मौका मिलता है वो फिर भी अपना डंग तो बाज नहीं आउंदागा। यही हालत साडे मन दी है, जिहड़ा कि असीं समझदे सां साडे वस आ गया। जद भोगां दी अंधेरी चलदी है ये फिर सानू प्रेर के बस्तियां विच लै आउंदा है। अंदरों ही मन समझाउंदा है कि लै मैं तो परमात्मा तो आग्या ले ली है। बहुत सारे लोग ऐसा भी ढोंग रच लेंदे है कि सानू अंदरों गुरु ने प्रेरिया होया है। हालांकि मैं दसदा हुंदा है कि गुरु नूं कोई आदमी बुद्धू नहीं बना सकता। जो अंदरला स्वरूप कम करता है बाहरले नूं पूरा ज्ञान हुंदा है। जो बाहरला स्वरूप करता है कम अंदरले नूं पूरा ज्ञान हुंदा है। लेकिन फिर भी असीं मन दे मगर लग के ये धोखा देण दी गुरु दे अगे कोशिश करते हैं कि जी तुसीं सानू अंदरों हुक्म दिता, ये हुण तुसीं सोच के देख लो कि गुरु तो दिन रात सानू इन्हां अपवित्र चीज़ों तो बचाउंदा है। दिन रात हो खुद बचा पुरुष है। वो कहता देखो बेटा, गण गंधर्व किसने भी इसनूं चख के देखिया वो पछताया। एक बारी दिमाग नूं विषे बकारां दी जहर चढ़ जे फिर ये जिंदगी पर उतरदी नहीं। सो इस वास्ते सहजो बाई प्यार ना कहती है कि किहदी शरण विच जाना है? जो खुद बचिया है। तो बचिया ही बचा सकता है जी। ऐसे गुरु तो बहुत हैं, तूत तूत तन ले हैं। सहजो सत गुरु जो मिले, मुक्त ताम फल दे हैं। ऐसे गुरु ता इट चक्को थल्लो गुरु ही निकलेगा, चेला नहीं निकलेगा।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਦਾਵ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸੁਗੰਧ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੜਾਵਾ ਚਾੜੇਗਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰ ਜਾऊं ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਕੇ ਕਾਜ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਮੋਹੇ ਨਾ ਆਵਾ ਲਾਜ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਜਾਤੀ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਾਂ ਦੀ खेती ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਬੂਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਵੀ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਣਾ ਉਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰਵੀਦਾਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ ਚਿਤ ਤਿਤ ਰੂਪਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਰ ਮਾਹੀ। ਸਹਿਜੋ ਗੁਰੂ ਭਰਤੀ ਬਚੈ, ਨਿਗੁਰੇ ਉਰਜਤ ਜਾਹੀ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਕੁਟੁੰਬ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੇਤਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਕੌਣ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ? ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਤੇ ਮਿਲੇ, ਲੱਖ 84 ਮਾਹੀ। ਸਹਿਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਕੜ ਨਿਕਾਸੈ ਬਾਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ 184 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਤੀ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਮੇ ਭੋਗੇ। कहानों भी पता नहीं कि कितने के जामे भोगने हैं। तो कहने लगे ये क्यों भाई ऐसा होया, किसी भी जामे अंदर गुरु ना मिलया, शब्द रूपी गुरु, मुक्तिदाता गुरु ना मिलया। अगर गुरु मिलया हुंदा कोई शब्द रूपी, कि असी फिर 84 विच चले जांदे। कहंदे नहीं, अगर सच्चे गुरु नूं पकड़ के जे असी 84 जी जाना है तो ऐसे गुरु दे पास जान दा की फायदा है जी। जन्म जन्म हर संग ही मिल रे हो आठों जाम, सहजो गुरु के बिन मिले पायो ना बिसराम। बेशक सारी दुनिया से जो कहती है परमात्मा नूं कि सर्व व्यापक है, हर घट दे विच वो हैगा है। जिवें धरती अंदर पानी है, किते 100 फुट गहरा है, किते इदू ज्यादा भी गहरा है, किते 5-4 फुट भी गहरा है, लेकिन प्यास किन्ना दी बुझदी है, जो उत्थे नलका वगैरह लगा के कढ़ लेंदे है या कुआ खोद लेंदे है। तो कहने लगे जद असी हाथी बने, घोड़े बने, पशु पंछी बने, उदों भी परमात्मा साडे अंदर व्यापक सीगा, लेकिन साडी किसी ने रखिया ना करी। इस जन्म विच गुरु चरणदास मिले ते मैनू बांह फड़ के इथों निकाल लिया है। तो कहने लगे गुरु दे घर भगवान है। मैं दसदा हुंदा कि संत परमात्मा तो बड़े तो नहीं हुंदेगे, पर उन्होंने भगती करके अपने प्यार दियां संगलियां च जरूर उन्होंने बन लिया हुंदा है, खुश कर लिया हुंदा है। तो प्यारा पुत जो चाहे अपने पिता तो करा लेंदा है। तो संत भी उसके प्यारे पुत्र बन जाते हैं। प्यारा पुत्र कौन है बई? जो पिता का कहना मन्ने। ये नहीं कि घर अंदर कोई मौत हो गई, कोई घाटा पै गया ते गुरु नूं गालियां निकालन लग पे कि छड्डो। कहंदे नहीं, गुरमुख वो है जो पाणा मनदा है। सो ऐसा आम संतां दी जिंदगी दे विच हो जाता है। महाराज सावन सिंह अपनी जिंदगी का वाक़या सुणाउंदे हुंदे सी। उन्हां दा लड़का 32 साल का उबरसियर हुंदा सी। उन्हां ने ब्यास स्टेशन दे उत्ते दा सवास पूरा कराया। वो कहंदे मैं सोचा अगर डेरे लगे तो बीबी रुको जो बाबा जैमल सिंह दी सेवादार सी, वो कहेगी कि इस नूं रखो, बचाओ इस नूं। वो कहंदे इस दे नाल मेरी गुरमुखता दे विच फर्क पैंदा सीगा। जदों उसने आपदा आखिरी सांस पूरा किया, कहंदे मैं आपदे दिल नूं फरोल के देखिया, ना उदों कोई खुशी सी ना कोई गमी सी। कहंदे किहदी किरपा सी? ये बाबा जैमल सिंह दी सी, मेरे सतगुरु दी सी। इसे तरह महाराज कृपाल दी जिंदगी दे विच जद उन्हां दा प्यारा लड़का चोला छड्ड गया, वो कहंदे हुंदे कि जद कोई वस्तु लियाउणी करे उन्हें सारी दे उत्ते लेट जाना, हथ धर लेने कि ये मैं खाऊंगा। वो कहंदे असी कहना भी तू जो मर्जी है खा ला, जिहड़ी तेथों बचेगी असी वो ले लांगे, पर तू खा तां सबर नाल। जद वो बीमार होए अपनी धर्म पत्नी नूं कहा, फिर ये ना कहीं कि इहदा इलाज नहीं कराया, जेड़ा भी डॉक्टर कहे चंगे तो चंगा वो बुला दिना है। आखिर वो लड़का शरीर छड्ड गया। जद शमशान भूमि दे अंदर उसदा आखिरी
ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो जो राजा राम सराफ ताई जी ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈ ਸਫੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। महाराज कृपाल और राजा राम सराफ का। सो इस वास्ते सहजो बाई कहती है एक किहदी वडियाई है भी गुरु दी है जी। सहजो गुरु पूरा मिले शिष मैला कट चेत में बरसे कालर जिमी खेत न उपजै छेत। कहंदे गुरु पूरा मिल जावे पर जे शिश मैला होवे, शिश इस तरह दा होवे जिवें कलर वाली खेती है, बेशक उत्ते कितनी भी बारिश क्यों ना हो जावे उत्ते कुछ भी उगदा नहीं गा। मलया गिर के निकट जो सब द्रम चंदन होए की कर सीसों चीड़ वृष हुए न कबहू होए। कहंदे जिथे चंदन दा दरख्त हुंदा है सब दे अंदर अपनी खुशबू भर दिंदा है, लेकिन कीकर और चील दे दरख्त दे अंदर खुशबू नहीं जाती, वो खुशबू नू ग्रहण ही नहीं करते गए। इस तरह कबीर साहब ने कहा सतगुरु पूरा क्या करे जे सिखन में चूक, अंधे एक ना लगी जो वास बजाई फूक जी। शिष माटी शिष पाथरा शिष लकड़ी सम जोए सहजो गुरु पारस लगे कैसे कंचन होए। सहजो बाई कहती है अगर शिश मिट्टी जैसा है, लकड़ जैसा है, पत्थर जैसा दिल है, बेशक गुरु पारस है, लेकिन उसनू लग के किस तरह वो सोना बन सकता है, क्योंकि पास दे अंदर लोहे नू लग जावे तो गुण है कि वो सोना बनता है जी। शेष सराई तेल बिन पाती भी न माहे सहजो गुरु दीपक मिले चांदन हो सीना है। हुण आप प्यार ना कहते हैं जे शिश की यह हालत है कि लंप दे अंदर ना तेल है ना उहदे कल पुरजे ठीक है, बेशक गुरु नू प्रकाश रूप मिल गया है, लेकिन उस दीवे दे अंदर लंप दे अंदर किस तरह चानण होएगा। महाराज सावन सिंह भी कहते हुंदे सी जिस लंप दे कल पुरजे ठीक हन, तेल भी है बत्ती भी है, सिर्फ तीली लाउण दी देर हुंदी है। जिस लंप नूं अजे ठीक करना है उहदे विच तेल बत्ती पाउणी है तो टाइम लगता है। ऐसी ही साडी हालत है।
ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰੂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜੋ ਗੁਰੂ ਸਮਰਾਥ ਕਲਾ, ਸਰਵ ਦੇਸੀ ਸਰਵ ਅੰਗ, ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਹੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ, ਸਭ ਪਰ ਗੇਰੇ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਵੀ ਜੈਸੋ ਤੈਸੋ ਪਾਤ ਕੀ ਆਵੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਟ, ਗਾਠੀ ਬੰਦੀ ਸੰਤ ਸੇ ਨਾ ਪਰਖੇ ਖਰਖੋਟ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜੋ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਰੇਜ ਸਾ, ਸਭ ਹੀ ਕੂ ਰੰਗ ਦੇਤ, ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਬਸਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੇਤ। ਸਹਿਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਸਭ ਠੋਰ, यहाँ तहाँ गुरु ही लखे, दृष्ट न आवे और, देखत ही आनंद पाए, सतगुरु पहुँचे आए। पव सागर दुख रूप सू, सहजो लेई बचाए। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਧੁੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਧੁੱਪ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇਗੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਔਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੋ ਹਾਟ ਵਕਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੱਟੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਬੋਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀੜੀ ਸਿਰਗਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ।
तो हरिजन जाति का सी, इतना कोई खास सोहना भी आदमी नहीं सीगा। तो महाराज जी कार ते लंघ रहे सी, वो मनमोहनी मूरत जब चार अखां होईयां वो अखां दे विच समा गई, वो बाहर ना कर सकिया। हबोर कोई 50 मील साडे पिंड तो दूर है। वो दूसरे दिन उत्थे पहुंचिया। मेरे खेत बीच दी रस्ता हुंदा सी आम लोकां दे लंघण दा। वो लंघ रहा सीगा, वो अपनी रोजी रोटी एक गधी दे उत्ते कमाउंदा हुंदा सीगा। वो मेरे नाल बात करन लग्या और गधी जो सी वो खेत अंदर चरन लग गई। वो मैनू कहन लग्या कि थानू संतां महात्मा नूं मिलण दा बड़ा शौक रहिंदा है, बड़ियां तुसी कहानियां भी सुणाउंदे रहंदे हो। मैनू अज एक बड़ा ही प्रभावशाली चेहरा दसिया, कार ते जा रहा सी। वो मेरियां अखां अगे हुण भी फिर रहा है। ਉਹਦਾ चेहरा गुरु नानक दी तरह सी। एक होर आदमी उत्थों दी लंघ रहा सी, उसने उसनूं झिड़किया, कहंदा तूं आपदी गधी इन्हां दे खेत रजाउण वास्ते, चारा चारन वास्ते इन्हां नूं इहो जिहियां गल्लां सुणाउणा है। मैं क्या ना बई, मेरे दिल च वो एक एक गल कर रही सी। मैं क्या ना बई तू बई हरनाम सुना। वो कहन लग्या 1 साल बाद वो इत्थे आएगा। कुछ दिनों बाद वो खेत अंदर हाड़ी कट रहा सीगा। उन्हें आपदे लड़के नूं मेरी तरफ दवलिया, कहन लग्या लिया। मैं गया भज के, मेरे जांदे नूं ओह इस तरह लुढ़क जे गया। मैं उसका पट जो सिर सी उसनूं आपदे पट ते रखिया, पुछया सुना वे हरनाम। वो झाक के कहन लग्या जिस दे मैं दर्शन कीते सन, थानू दस्सिया सीगा, वो हवाई जहाज लेके आ गया है। मैं जा रहा है, 1 साल बाद वो इत्थे ही आएगा। ये सच्चाई है। हजूर महाराज जी 1 साल तो आए उत्थे। हुण तुसी देख लो कि कार की रफ्तार जिहड़ी सी कितनी तेज सी, तो दर्शना ने उसकी जिंदगी बनाती। इसे वास्ते कबीर साहब ने कहा, जब आवे तू आंख में, आंख चाव मैं लूं, ना मैं देखूं और को ना मैं देखण दूं। जे तू अखां विच आ जावे, मैं अखां बंद कर लवां, ना मैं किसी नूं देखण देवां, ना मैं खुद ही देखा। तुसीं नया भजन पढ़दे हुंदे हो, मैं पलकां च रख ਲਾਂ छिपा के तैनूं, तू दिल वाले विहड़े विच आके तां देख कि मैं तैनूं अखां दे विच ਇਹ पलकां हण दो। अगर तू इन्हां विच आवें, मैं तैनूं छिपा के रख ਲਾਂ, अखां 'ਚ बंद कर ਲਾਂ। तू मेरे अंदर एक बारी आके देख, मैं कितनी कदर करूंगा। जी। चारन दास के चारन पर सहजो वारे प्राण, जागत बेयाद सु काढ़े कर, राखे ओ पद निर्बान। सहजो गुरु महिमा कही, पढ़ सुन ही आसराए। उपजै गुरु की भगत दृढ़, दुविधा दुर्मत जाए। सहजो बाई ने सारी बाणी कह के, शब्द कह के आखिर इको ही गल कही है कि मैं गुरु दी महिमा, गुरु दी कदर, गुरु दे मिलाप दी कथा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, इससे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਣੀਆਂ ਲੈ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮੂਹਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। तो माथे पीर शरीर जलत है, करक करेजे माही। गुरु साहब प्यार ना कहते है कि जे दर्शन नहीं हुंदे की हालत है, मथे च दर्द है। जिथे वो प्रगट हुंदा है, जिथे वो नाम देने वेले शब्द रूप होके अंदर बैठा है, दिल जलदा है। क्यों भाई, ऐसी हालत प्रेमी दी हो जाती है। तो राबिया बसरी तो किसी ने पूछा कि थानू की पता लगता है कि हुण परमात्मा आ गया है, गुरु रूप परमात्मा आ गया है। वो कहने लगी हाँ, पता लग जाता है जद मेरे दिल अंदर खिच्चियां धुआं पैंदियां हन, अखां अपने आप बंद हो जांदियां हन, अंदरों पानी अखां तो आना शुरू हो जाता है। मैं उस वक्त अपनी नमाज अपना ब्याह शुरू कर दी है। सो प्यारिओ, गुरु ही प्यार का पौधा सेवक दे अंदर लाउंदा है, सत्संग दा वो पानी दिंदा है। वो नाम दे के बेफिक्र नहीं गा, सत्संग भजन दी वाड़ है। इसे वास्ते साडे परमात्मा गुरु कृपाल ने कहा कि 100 कम छड्ड के सत्संग अंदर जाओ, 1000 कम छड्ड के अभ्यास विच बैठो। उन्ना चिकर तन नूं खुराक ना दे लो जिन्ना चिकर तुसी आत्मा नूं खुराक ना दे लो। तन दी खुराक अन्न है, तो आत्मा दी खुराक शब्द नाम दी कमाई है। सो सानू भी चाहिए जो कोई सहजो बाई ने अपने शब्द अंदर समझाया है, उस ते अमल करिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए। हाँ भाई।